Hey guys, good evening everyone. Welcome to this another session. Can you hear me all? Can you tell me guys? Yes? Please let me know if you can hear me. Okay, great. So welcome to this another episode of JEE Sprint 2.0, right? Season 2. And today we are going to do capacitance. You can hear me, right? Great. I can see people. Ravi, Gaurav is there. Same name by the way. Mogal, Ayman, yeah, Shubham, great to see you guys. Okay, so how's the Josh guys? तैयार हैं capacitance के लिए? Yes, Priyanka, I remember you from Pune, right? Great. चलो, so this is the session where we are going to discuss capacitance, right? JEE Sprint का अगला season capacitance का. So those who don't know me, just I'll introduce myself a bit. So my name is Gaurav Gupta. Did my engineering from NIT Rourkela. I have cleared this prestigious examination of GATE with 99.5 percentile. And yes, I have been teaching since last 4+ years. And I have taught and mentored 5,000+ students. And today, because of your love, I am here guys, okay? तो capacitance पढ़ते हैं आज. सबसे पहले, first of all, ये बहुत important information है. So please take this information. Vedantu app, if you have not downloaded yet, प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम द प्ले स्टोर. राइट, यहां पे आपको डाउट्स मिलेंगे. यू कैन आस्क एज मेनी डाउट्स एज यू वांट फ्री में. ऑल्सो यू विल गेट द स्टडी मटेरियल्स और क्लासरूम रिसोर्सेस. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज डाउनलोड इट. ऑल्सो इन द ऐप यू विल बी गेटिंग द डेली एक्सेस टू द सेशन पीडीएफ. ठीक है, सो आफ्टर द सेशन यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ जिससे तुम रिवाइज कर सकते हो वेरी इजिली. Also mini test, ये बहुत ज़्यादा important है because during your preparation of JEE the most important thing is test, isn't it? I'll not take much time, just I'll tell you mini mock test is on the 1st and 3rd of April and then there will be a mega mock test on 4th of April and this will include, this will have the same pattern as that of the JEE mains. Okay, 3 hours में तुम्हें करना होगा. So this is very useful guys. चलो let's move ahead. आगे शुरू कर लेते हैं. Yeah, and also don't forget, if you have not yet subscribed to the channel, please subscribe, like and share because sharing is caring, isn't it? चलो आगे बढ़ जाते हैं guys. So today we are going to do the capacitance as I told you. See, there is not much revision required I guess because capacitance में everything is formula based. Whatever is concept required that I'll be telling during the question itself. Okay? चलो, can you see the question? Yes, please read the question. A parallel plate capacitor. Before starting the question, let me tell you ये question कहाँ से है. This is from your JEE main 2019. Okay, most of you requested after the last session that you need questions from JEE main 2019, right? January. तो ये January JEE main का question है. One very important thing guys, in all the sessions of JEE mains 2019, we have one question from capacitance. So see how important it is, right? Doing capacitance will ensure you 4 marks in your JEE, isn't it? So this is very important. शुरू करते हैं. Let's do this question. Okay, great. A parallel plate capacitor is of area this much. So total area is given. Separation is 3 mm. Very important to understand कि area कौन सा होगा. Area will look something like this. देखो, this will be the area, right? इसको imagine करो ऐसे. So this is the area which is given at 6 centimeter square. ये वाला, इसको ऐसे shade कर लो, right? This is the plate. Another plate is here, नीचे, isn't it? What is the separation of the plates? It is given as 3 mm. Great. Now it says 3 dielectric materials of equal thickness. तो अगर total length is L, तो इसका length कितना है? L/3, L/3, L/3. ऐसे 3 dielectrics are there. Their K value is given, right? Dielectric constant value is given to me. 10, this one is 12 and this one is 14. ये मुझे दिया हुआ है. Now he is saying the dielectric constant of a material which when fully inserted, मतलब 3 dielectric के जगह we need just 1 dielectric. Then he is asking what should be the value of that material, right? That dielectric. ठीक है, शुरू करते हैं. How to do this first of all? So we know the capacitance का formula, simple capacitance का formula. It is epsilon naught A by D. Epsilon naught A divided by D. ये formula होता है. We know this. But this is when there is no dielectric. जब air या vacuum होता है medium, then this is the formula. But when there is some medium, dielectric medium inserted, तो ये क्या बन जाता है? K times, isn't it? This is the simple formula. K epsilon naught A divided by D. Imagine करो, if this total area of the plate is A, ठीक है? Total area of the plate कितना है? A है.
तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट फॉर द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक? A/3, isn't it? ये कितना हो जाएगा? A/3 एग्जैक्टली। तो इफ आई राइट कैपेसिटेंस फॉर द फर्स्ट वन, ये वाला प्लेट, ये जो आपको दिख रहा है ना, प्लेट नहीं, ये वाला डाइलेक्ट्रिक यू कैन से। सो फॉर दिस पोर्शन इफ यू आर राइटिंग द कैपेसिटेंस, ये कितना हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 इंटू D। ये D तो सबके लिए सेम है, तो दिस इज D। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C1, है ना, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3D। अब जल्दी से बाकी का भी लिख लेते हैं। व्हाट अबाउट C2? C2 भी सेम हो जाएगा, राइट? जस्ट K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3 इंटू D। एंड व्हाट अबाउट C3? सेम थिंग, C3 ऑल्सो विल बी K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3D। तो ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ दीज सेपरेट थिंग्स, K1, K2, K3 वाले का, isn't it? I can see some correct answers. मनोज, गोविंद, गणेश, एवरीवन इज करेक्ट, गुड जॉब। तो ये हो गया C1, C2, C3। अब देखो दीज थ्री कैपेसिटर्स, ये जो तीन है ना ऐसे 1, 2 एंड 3, आर दे इन पैरेलल और इन सीरीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट, कि ये पैरेलल में है या सीरीज में। देखो दिस इज वन ऑफ द प्लेट एंड दिस इज अनदर प्लेट, तो करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हियर, राइट? यहां से ऐसे आएगा करंट, जो भी चार्ज आएगा, एंड दैट विल फ्लो फ्रॉम हियर। यू कैन सी द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दीज थ्री कैपेसिटर्स इज गोइंग टू बी सेम। यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम फॉर दीज थ्री, है ना, सेम फॉर दीज थ्री। तो सीरीज नहीं है, वो पैरेलल है, isn't it? सीरीज होता अगर करंट वाज सेम। यू कैन नॉट से दैट करंट इज सेम, राइट? करंट इज डिफरेंट, वोल्टेज इज सेम। तो क्या हो गया ये? एग्जैक्टली पैरेलल। और पैरेलल में इफ दिस इज कैपेसिटर, देन पैरेलल में C इक्विवेलेंट इज हाउ मच? C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है? C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, जस्ट ऐड दीज थ्री, राइट? आई एम टेकिंग 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 3D एज कॉन्स्टेंट। तो अंदर क्या बच जाएगा? K1 प्लस K2 प्लस K3। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है? अब देखो, ही हैड सेड कि पूरा जो सिस्टम है, यू हैव टू रिप्लेस दिस होल सिस्टम विथ ओनली वन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। पूरा हटा के सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक लगा दो, राइट, ऑफ सम डिफरेंट मटेरियल। तो ये देखो पूरा एक डाइलेक्ट्रिक इसको फिल कर दिया। लेट्स से K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देन व्हाट विल बी द C वैल्यू फॉर दिस? इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया कितना? नॉट A/3 बट ओनली A, क्योंकि पूरा एरिया लेंगे ना अब तो। दिस इज टोटल एरिया, सो A डिवाइडेड बाई 3। एंड इफ दीज टू हैव टू बी सिमिलर, है ना, तो इन दोनों का भी इक्वेट कर लो, isn't it? सो दिस वैल्यू, दिस शुड बी इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो इवन द वैल्यू ऑफ A वाज नॉट रिक्वायर्ड, सीधा कैंसिल हो जाता है वो, है ना? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K नाउ? K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई 3, है ना? और K1 प्लस K2 प्लस K3 कितने हैं? 10, 12, 14, 36 बाई 3, 12. 12 is the correct answer. Okay? This is how we solve the question. 12 is the correct answer. चलो, and this was from JEE Mains, है ना? Great. चलो आगे बढ़ जाते हैं. Next problem. Okay, this is an easy one. बहुत easy है ये. Okay, चलो. हाँ ठीक है. Let's move ahead. ये वाला प्रॉब्लम करते हैं. I can see your responses. कई लोगों ने सही आंसर दिया था. What about this? Anyone with the answer? So there are different plates, right? Let's say plate number 1, 2, 3 and 4. 4 plates है, and this is how they are connected. And he is asking what is the capacitance of this system? Okay, what is the capacitance of this system? Yes, constraint motion भी आएगा. Don't worry. Everything you will get. Don't worry. हाँ, I can see many correct answers here. But yeah, some are wrong also. Yes, Deepan, it is live only. This is live session. हाँ, चलो ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे देखो. In such problems, they are very complicated when you see like this. Okay? इसका मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ. There is a way of doing this. Okay? देखना ध्यान से. Let's say this potential is some potential A, and this potential is some potential B. First of all, you need to identify how many capacitors are there. तो एक कैपेसिटर तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में हो जाएगा, राइट? 1 and 2 के बीच में 1 कैपेसिटर इज देयर. इज देयर एनी कैपेसिटर बिटवीन दीज 2 प्लेट्स? नो, क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे है. देखो 2 का पोटेंशियल भी A है, 3 का पोटेंशियल भी A है, राइट? तो दे आर सेम प्लेट ओनली. इसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हो कि सिंपल यहाँ पे एक प्लेट बना दिया, isn't it? बट 1 कैपेसिटर इज देयर बिटवीन 3 and 4 बिकॉज दे आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स. ठीक है, अब देखो
कैसे इसको सॉल्व करते हैं? When you have this kind of complicated diagram, those who have not solved, I am telling you, I know some of you have already solved, right? But I have to take care of everyone, so I am telling you how to solve this. तो आप दो पॉइंट्स अलग अलग ड्रॉ कर लो, पॉइंट A, पॉइंट B, ओके? See the first capacitor. It is between potential of B and A, है ना? यहाँ का पोटेंशियल B और यहाँ का पोटेंशियल A. So just draw the capacitor, that capacitor, पहला वाला, between A and B. बस हो गया. Next, this is not a capacitor, between B and B ही है, right? What about 3 and 4? These plates, these two plates are also across A and B. तो ये भी A और B के across ही draw होगा. Now this diagram looks very easy, isn't it? ये बहुत easy बन जाता है. And then you can see very easily कि both are in parallel. Both are in parallel. एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. अगर पैरेलल में है तो बोथ विल बी एडेड और करेक्ट आंसर होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D. ठीक है, ग्रेट ग्रेट. चलो, आई कैन सी सम करेक्ट आंसर्स. यस, रिस्पॉन्स इज गुड गाइस. समझ में आ रहा है ना? ग्रेट. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट. ओके, अगेन दिस इज फ्रॉम योर जेईई मेंस 2019. ओके, 2019 का क्वेश्चन है. ट्राई करो एवरीवन. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस दे दिया उसका आपको 12 पिकोफैरेड. ओके, चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स. उसका पोटेंशियल कितना हो गया? 10 वोल्ट. द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड. चार्जिंग बैटरी को उसने हटा दिया यहां से. ओके, द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड और फिर एक स्लैब लगा दिया उसमें. स्लैब इज इंसर्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5. राइट. ही इज आस्किंग द वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब इज वर्क डन. Yes, exactly. सौम्य ब्राता, he's saying loss of energy. Correct. ऐसे ही करना है बिल्कुल. Okay. चलो, let me explain guys. सबसे पहले. So what he did initially, he took a capacitor, parallel plate capacitor of 12 picofarad capacitance, something like this, and he charged this by a battery, right? So he connected a battery with this, and he charged it 12 volt, 10 volt battery, isn't it? Great. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आ गया that is 10 volt. And capacitance is 12 picofarad. ठीक है, it was fine up to this, right? Then what he did, he removed the battery, disconnected the battery. The moment you will disconnect the battery, ये सिर्फ आपको ऐसे कैपेसिटर दिखेगा, है ना? 12 picofarad is the capacitance और voltage will be 10 volt. ऐसा कुछ हो जाएगा, isn't it? The moment you disconnect the battery, what is going to remain same? ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. There are two cases of inserting dielectric. One is inserting the dielectric keeping the charge constant. One is inserting the dielectric keeping the potential constant. When you disconnect the battery, charge cannot go anywhere. ये खुला है, right? Capacitor. Charge cannot flow. तो in this particular case, charge is going to be constant. चार्ज चेंज नहीं होगा. ओके, चार्ज विल रिमेन सेम. बट इफ बैटरी वाज स्टिल कनेक्टेड एंड देन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, देन पोटेंशियल विल रिमेन सेम, राइट? बट इन दिस केस क्या सेम है? चार्ज. चलो, बहुत बढ़िया, ग्रेट. आगे बढ़ जाते हैं. फिर क्या बोल रहा है वो? इसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, राइट? हियर सम डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड. तो ये छोटा सा मान लो अपना डाइलेक्ट्रिक है. द मोमेंट यू इंसर्ट द डाइलेक्ट्रिक, द कैपेसिटेंस which was let's say initially C is the initial capacitance. The final capacitance C dash will become K times C, है ना? ये फॉर्मूला सबको आता है. It will become K times C. मतलब K हमें दिया हुआ है, राइट? 12 पिकोफैरेड, तो K times C हो जाएगा. ठीक है, ग्रेट, नो प्रॉब्लम इन दैट. हमें क्या निकालना है? वर्क डन. लेट्स राइट डाउन द इनिशियल एनर्जी. B is not the correct answer. B is not correct. Those who are saying B. इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? Q square by 2C. ये फॉर्मूला सबको आता है ना? इनिशियल एनर्जी इज Q square by 2C. फाइनल एनर्जी क्या लिखेंगे? इज चार्ज चेंजिंग? नो, चार्ज इज सेम. तो Q square डिवाइडेड बाई इज कैपेसिटेंस चेंजिंग? यस, कैपेसिटेंस विल नाउ बिकम K times C, है ना? Q square by 2kC. एंड व्हेन यू वांट वर्क डन, यू जस्ट हैव टू टेक द डिफरेंस, है ना? तो वर्क डन विल बी द चेंज इन एनर्जी. जो भी एनर्जी में चेंज आया दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन. तो Q square by 2C, इसका और इसका डिफरेंस ले रहा हूं, राइट? दिस माइनस दिस, तो इट विल बी 1 minus 1 upon K. ठीक है, दिस इज द बेसिक रिजल्ट. ये याद होना चाहिए तुम्हें. इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, यू कैन डिराइव इट वेरी सून, राइट? डोंट वरी इन दैट. तो वर्क डन आ गया Q square by 2C, 1 minus 1 by K. बट चार्ज इज नॉट गिवन टू मी. C इज गिवन, V इज गिवन,
क्यू स्क्वायर बाई 2c को आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाफ CV स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई के। नाउ यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट। c का वैल्यू रखो, v का वैल्यू रखो एंड k का वैल्यू रखो, राइट? जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द करेक्ट आंसर D 508। शुभम, दिस इज JEE क्वेश्चन ओनली, JEE January क्वेश्चन ओनली, दिस इज फ्रॉम JEE 2019 January। ओके, चलो गाइस, समझ में आ गया क्या? यस। सो व्हाट वी हैव डन, किसी ने बोला एक बार फिर से बताने, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। क्या किया है हमने? डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद वी फाउंड आउट द फाइनल कैपेसिटेंस, इनिशियल एनर्जी लिखा, फाइनल एनर्जी लिखा, डिफरेंस लिया, हो गया। ओके, चलो ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure shown, this is again from JEE Mains 2019, okay? So in each session there was one question from capacitor, very important। ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, because we are going to give JEE again in April। हो सकता है कैपेसिटर से फिर से क्वेश्चन आए हर सेशन में, so capacitance you cannot neglect, ठीक है? ध्यान से देखो, in the figure shown below, charge on the left plate of the 10 microfarad capacitor is given as minus 30 microcoulomb। तो यहाँ का चार्ज कितना हो गया? minus 30 microcoulomb। लेफ्ट प्लेट, ये वाला प्लेट, इफ लेफ्ट प्लेट इज दिस मच देन राइट प्लेट कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस में क्या होता है? प्लस 30 हो जाएगा, ये वाला, इजंट इट? दिस इज प्लस 30। अब देखना ध्यान से, आई हैव टू कैलकुलेट चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, राइट? इसके राइट वाले में। अब देखो, व्हेन 30 कूलम चार्ज कम्स फ्रॉम हियर, दिस 30 कूलम चार्ज विल बी डिवाइडेड बिटवीन दीज टू कैपेसिटर्स, क्योंकि ये पैरेलल में है, राइट? दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, तो इट हैज टू डिवाइड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। हाउ टू डिवाइड द चार्ज? सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, ये होता है। तो Q विल बी इक्वल टू हाउ मच? C इंटू V, है ना? Q विल बी इक्वल टू C इंटू V। यहां से आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि Q1 इज टू Q2, रेशियो ले रहे हैं, इज इक्वल टू V, तो सेम है ना, पोटेंशियल इज सेम, दे आर इन पैरेलल, तो C1 इज टू C2, ऐसा लिख लो आप, है ना? C1 इज टू C2, तो 6 इज टू 4 का रेशियो आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट दैट रेशियो, करेक्ट आंसर शुड बी 18। 18 आ रहा है क्या सभी का? ट्राई करो, जस्ट दिस यू हैव टू डू, राइट? सो C इज इक्वल टू Q बाई V, एंड देन यू हैव टू जस्ट Q इज इक्वल टू C इंटू V, Q1 इज टू Q2 इज इक्वल टू C1 इज टू C2, ठीक है? सो यहां पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी 18, राइट? तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस इज प्लस, दिस विल बी माइनस, तो यहां पे प्लस, एंड ही हैज आस्क्ड फॉर द राइट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, right side, isn't it? So right side will be plus 18, okay? This will be your correct answer। चलो ठीक है, first shift, okay, I'll see that also। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? How sir? इसमें बस रेशियो लेना है ना, this is easy only, है ना? I think you understood this। चलो great, next question we'll take guys। हाँ, this is again very important, फिर से जनवरी, ठीक है? दिस इज अगेन फ्रॉम जनवरी ओनली। 7 capacitors, each of capacitance 2 are to be connected in the configuration। There are 7 capacitors, right? In all cases, he is saying effective capacitance has to be this much। तो हर कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है, एंड फाइनली यू हैव टू गेट 6 by 13 माइक्रोफैरड, isn't it? Now he is asking which of the combination will fit this, isn't it? किस कॉम्बिनेशन में you will get the correct answer। तो यू कैन ट्राई फॉर एवरीथिंग, राइट? ये वाला देखो, C में करेक्ट आ जाएगा बिल्कुल। आई जस्ट टेल यू हाउ। इफ यू टेक दिस एज 2, ये भी 2 और ये भी 2, दीज 3 आर इन पैरेलल, राइट? ये तीनों पैरेलल में है, दीज 3 आर इन पैरेलल। तो जब पैरेलल में है, यू विल ऐड देम, वो कितना बन जाएगा? 6, isn't it? दिस विल बिकम 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि दैट विल बिकम 6, isn't it? And now these are in series, 2 2 2 and 2, right? These are in series। सीरीज में when you will add them, जब सीरीज में आप उनको ऐड करोगे, then what will be that? 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2, है ना? कितना आ जाएगा वो बताओ? How much will be that? 1/2 ही आ जाएगा, isn't it? That will be 1/2। तो ये हो गया 6 and this one will be 1/2, and now this 6 and this 1/2 will be in series again। 6 and 1/2 will be in series again। तो उनका जो कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी 6 इंटू 1/2 अपॉन 6 प्लस 1/2। फॉर्मूला सबको आता है ना? फॉर्मूला यू नो ऑलरेडी, राइट? सीरीज और पैरेलल में। सो दिस विल बी दिस, यस, इट इज अ JEE क्वेश्चन, एग्जैक्टली। सो 6 इंटू 1/2, 6 प्लस 1/2, सॉल्व दिस एंड यू विल बी गेटिंग दिस एज द आंसर।
हाँ ये आ जाएगा, मतलब 6/13 माइक्रोफेरेड। ओके चलो ग्रेट। सो दिस इज ऑल्सो जेई, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम जेई जनवरी क्वेश्चन। ओके चलो ग्रेट, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इट विल इंक्लूड वेरी गुड कंसेप्ट। ठीक है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें। इन द फिगर शोन आफ्टर द स्विच एस इज टर्न्ड ए टू पोजिशन बी, पहले स्विच जो है दैट इज इन ए, राइट, पहले वो ए में है एंड देन इट इज शिफ्टेड टू बी, ऐसा बोल रहा है वो। द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड द टोटल चार्ज क्यू इज। ओके, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ सी एंड क्यू इज आस्किंग। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज विद दिस बैटरी, ठीक है, चार्ज विद दिस बैटरी ऑफ V वोल्ट, आई एम ड्रॉइंग जस्ट दिस मच सिचुएशन, ये वाला A की में जब वो है, राइट, आई एम ड्रॉइंग दैट। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये हो गया C, दिस इज अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल V, दिस डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस, इजंट इट? सो दिस इज -V एंड दिस इज +V, क्योंकि छोटा टर्मिनल है ये बड़ा टर्मिनल है। सो इन स्टेडी स्टेट हाउ मच द चार्ज इट विल हैव, ये वाला कैपेसिटर हाउ मच चार्ज इट विल हैव? C into V, isn't it? So this will be -CV and this will have +CV. ये चार्ज हो गया, isn't it? -CV and +CV. But now this is connected to other capacitor of 3C. अब देखना ध्यान से. So now you have this capacitor C and switch is shifted to point B, right? इस तरफ आ गया है. तो this will be 3C. Okay? और इसके पास कितना चार्ज है इनिशियली इस वाले कैपेसिटर के पास? -CV and +CV. This is the situation, right? So at final situation, when it is shifted to B, let's calculate what are the charges on the capacitors and what is the potential, so that we can find out initial energy यहाँ से and final energy यहाँ से. When you will subtract initial energy and final energy, you will get the answer, right? ये आ जाएगा तुम्हारा energy dissipated, isn't it? यहाँ तक clear है सबको? Great. आगे बढ़ते हैं. So -CV and +CV. We know when you connect two capacitors, finally उनका जो potential होगा that will be same, है ना? Finally the capacitance will be same. How 3C? ये तो दिया हुआ है ना मुझे 3C. 3C is given to me. अब देखो final potential will be same. तो let's say finally this potential becomes -+V. मतलब इन दोनों कैपेसिटर के बीच में जो पोटेंशियल है, राइट, इसको V डैश ले लेते हैं बिकॉज V हैव टेकन हियर. तो दिस इज द फाइनल पोटेंशियल बिटवीन दीज टू प्लेट्स, राइट? अब ध्यान से देखना, इफ दिस इज द फाइनल पोटेंशियल देन व्हाट इज द फाइनल चार्ज? आई एम ड्रॉइंग द फाइनल चार्ज नाउ, राइट? ये इस प्लेट का इनिशियल चार्ज था विच केम फ्रॉम हियर -CV, और ये इस प्लेट का इनिशियल चार्ज था +CV. व्हाट इज द इनिशियल चार्ज ऑफ दिस प्लेट? 0, और ये भी 0 बिकॉज दैट वाज अनचार्ज्ड. द फाइनल चार्जेस विल बी इक्वल टू C into V डैश, राइट? तो यहां पे जो फाइनल चार्ज आएगा that will be -CV dash, isn't it? And what is the final charge on this plate? +CV dash, है ना? Final charge on this plate will be 3CV dash माइनस में, and this will be +3CV dash, because तुम्हें फॉर्मूला पता है, right? Charge is equal to C into V. So capacitance into the potential, final potential. तो these are the final charges, है ना? ये जो ब्लैक में मैंने लिखे हैं these are the final charges. ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है ये? Exactly. अब देखो ध्यान से. Now there is a trick. ध्यान से देखना. There is a trick. Whatever charge was there on this plate, जो इनिशियली था, फाइनली ऑल्सो, ध्यान से देखना इस चीज को, राइट? ये वाला पोर्शन आप एक बार अलग करके समझो इसको. आई ड्रॉ विथ अ डिफरेंट कलर. ये वाला पोर्शन देखो ध्यान से, दिस पोर्शन, ओके? दिस पोर्शन इफ आई ड्रॉ डिफरेंटली, अलग से मैं इसको ड्रॉ करता हूं यहां पे. सो सी, दिस पोर्शन इज ड्रॉन डिफरेंटली लाइक दिस, ओके? जो नीचे कैपेसिटर के प्लेट्स हैं, द चार्ज कैन नॉट जंप लाइक दिस. कैपेसिटर के प्लेट्स में चार्ज जंप नहीं करता, राइट? चार्ज विल बी देयर ड्यू टू इंडक्शन. इट कैन नॉट जंप फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? सो वट एवर चार्ज वॉज देयर इनिशियली इन दिस रीजन दैट विल रिमेन सेम, है ना? इस यहां पे चार्ज प्लस यहां का चार्ज दैट विल रिमेन सेम इवन आफ्टर स्विचिंग इट. तो देखो यहां पे इनिशियल चार्ज कितना था? यहां पे CV और यहां पे 0. So initial charge was -CV. That's it. Final charge अब कितना हो गया? Finally it became -CV dash. It became -3CV dash. तो total final charge became -4CV dash.
From here you will get the equation of V dash. तो V dash will be equal to V divided by 4, है ना? इतना करके हमने सिर्फ पोटेंशियल निकाला है अभी, isn't it? यहाँ का फाइनल पोटेंशियल आ गया V by 4. Now you have to find out energies also, है ना? एनर्जी निकाल लेते हैं अब. So we have got the final potential. Now let's try to do the energy part. तो देखो ध्यान से. So I have got initial potential was V, final potential is V by 4. If you see in the previous diagram, what was the capacitance initially? यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ initial energy, right? तो यहाँ पे जो चार्ज था that was CV. Initial energy if you will take, that will be just half CV square, है ना? This will be the initial energy. But if you will take the final energy, finally there are two capacitors, ऐसे कुछ, isn't it? One capacitor is of capacitance C, this is of 3C. The potential difference is minus plus V divided by 4. अभी निकाला हमने, है ना? V by 4. अब देखो लिखो यहाँ पे फाइनल एनर्जी, इसका जो फाइनल एनर्जी है फॉर दिस कैपेसिटर, इट विल बी हाफ सी वी बाई 4 स्क्वायर, है ना? प्लस इसका जो फाइनल एनर्जी है दैट विल बी हाउ मच? हाफ 3c इंटू वी बाई 4 द होल स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी द केस. अब इसको सॉल्व करो, हाउ मच यू आर गेटिंग? इट विल बी सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 2 दैट इज 32 फाइनल एनर्जी इसका, प्लस इसका क्या हो जाएगा? 3cv square divided by 4 4 16 into 2 that is again 32, right? So 32 is the LCM for 1 upon 8. So 1 upon 8 cv square is the final energy. So this is a very good problem guys. देखो JEE mains में आया है but this is very important, isn't it? Initial energy आ गया, final energy आ गया. Now what to do for energy? मतलब energy dissipated, difference लेना है दोनों का, isn't it? तो जस्ट टेक द डिफरेंस. इनिशियल एनर्जी दिस मच, फाइनल दिस मच. तो जो एनर्जी डिसिपेटेड हुआ दैट विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 8 CV स्क्वायर, है ना? इनका डिफरेंस आ गया तो इक्वल टू CV स्क्वायर बाहर ले लो, जस्ट टेक द डिफरेंस, राइट? 8 विल बी द LCM, 4 minus 1 3 by 8 CV स्क्वायर. ठीक है, 3 by 8 CV स्क्वायर एंड CV स्क्वायर कैन ऑल्सो बी रिटन एज Q स्क्वायर बाई C. Q स्क्वायर बाई C. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 by 8 Q square by C, isn't it? Yes, great. This is the correct answer and this was a very good problem, right? Charges निकालना आपको आना चाहिए, potential निकालना you should know how to do it, isn't it? चलो guys, great. Let's move ahead with the next problem. हाँ, this is again important but basic है ये, okay? Basic problem. देखो ध्यान से. The charge on a capacitor plate in a circuit as a function of time it's shown in the figure. एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है. वट इज द वैल्यू ऑफ करंट t एट 4 सेकेंड? 4 सेकेंड में करंट. एनीवन विद द आंसर? आई वॉन्ट टू नो द आंसर. आई कैन रीड योर कमेंट्स. प्लीज टेल मी आंसर फॉर दिस. एनीवन? ओके, यस, अंकित इज करेक्ट, प्रमोद इज करेक्ट, यस, श्री मधु इज करेक्ट, कमल करेक्ट, गुड जॉब गाइस. विनय, या आई एम बॉम्बार्डेड विद द आंसर्स नाउ. ग्रेट, बहुत अच्छे. ठीक है, आसान क्वेश्चन है एंड गुड थिंग फॉर यू. द पॉजिटिव थिंग इज ये भी JEE मेंस में आया है, राइट? JEE मेंस जनवरी. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम देयर ओनली. सो आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट केम इन JEE मेंस जनवरी. अब देखो ध्यान से क्या करना है. चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एंड ही इज आस्किंग करंट. इससे आसान क्या हो सकता है? आई नो करंट का वैल्यू, राइट? करंट का इक्वेशन इट इज dq डिवाइडेड बाई dt. करंट इज गिवन बाई dq डिवाइडेड बाई dt. dq by divided by dt का मतलब क्या है? दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, है ना? दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. अब देखो यहां पे 4 सेकेंड पे व्हाट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ? 0. हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप इज 0. तो इफ स्लोप इज 0, करंट विल बी 0. ठीक है, सो द करंट गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 0 एट 4 सेकेंड. ओके गाइस, ग्रेट. तो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ JEE Mains 2019. Again repeating one very important point. Almost in all sessions we have got one question from capacitor. So don't leave that. Revise it very carefully and do the questions. Okay. Chalo guys. So that's it for the session today. And yes, if you have missed some of the sessions, I have included the list. Okay. So this is for physics. Already started from 28th of March. These are the schedules. Please make a note of it and attend all the sessions. Right. What's your name, sir? My name is Gaurav Gupta. Chalo, next. This is again, today we are having capacitance, right?
नेक्स्ट डे वी आर हैविंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, कल करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। यस, मैथ्स का ये है स्केड्यूल, दिस इज द स्केड्यूल फॉर मैथ्स। यस, अगेन मैथ्स कंटिन्यूइंग, ओके, एंड दिस इज फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का स्केड्यूल, राइट। चलो गाइस, अगेन यू इंस्टॉल दिस वेदांतु ऐप, राइट, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलो, ग्रेट, और दीज आर द थिंग्स, राइट, अबाउट द ऐप दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।